So let's start, children. Question says that Sushman company ने machine खरीदी 1st July 2013 को and asset was to be depreciated at the rate of 10% per annum on written down value method and machine was sold on 1st July. तो first and foremost आप date of purchase के accordingly record करेंगे 1st July को and we'll be putting to bank rupees 1 lakh and year ends on 31st March 2014. So we'll be showing depreciation of how much? कैसे आएगा 7500? 1 lakh 10% is 10,000 into 9 by 12 कर देंगे तो it would be 7,500. Again shortage occurs on which side, children? Credit side. So we'll be putting buy balance carried down 92,500. यहाँ तक आ गया. Again on 1st April 14 we'll be having balance brought down of 92,500 because the method is a straight line or diminishing balance. Depreciation 10% 92,500 ka would be how much? 9,250 and so called 9250 आप इसमें से माइनस कर देंगे. What would be the answer? 83,250. Then we'll be showing the total on both sides. Again on 1st April 15, children. Sorry, यहाँ पे 15 होना चाहिए, गलती से मैंने 14 लिख दिया. 15, children. What would be your balance brought down? 83,250. Then children, 31st March 16 ko this year would certainly end. Depreciation would be 8325. What would be balance carried down on this date, children? 74925. 1st April 16 we'll be having two balance brought down 74925 और आपने असेट बेचा है जनवरी 1st 17 को, तो ये 16-17 वाले सेशन में फॉल करेगी डेट. सो चिल्ड्रन 1st January 17 तक आपने असेट को फिर यूज किया, isn't it? Won't you be depreciating it here? क्या हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करेंगे? करेंगे. कैसे आएगा भाई? 74,925 का 10%, बट जनवरी तक 9 मंथ्स होते हैं चिल्ड्रन, तो वैल्यू वुड बी 5619. सो 5619 डेप्रिसिएशन हो गया. बुक वैल्यू असेट की एट द स्टार्ट चिल्ड्रन वाज हाउ मच? 74,925 और आपने इसे डेप्रिशिएट किया 5619. क्या आएगी बुक वैल्यू ऑन 1st January 17, चिल्ड्रन? 69,306. and we sold it at what price, children? 56,500. तो 56,500 सेल वैल्यू है. It sold at a lesser value or higher value? Lesser value. How much less? 12,806 rupee. This sounds to be the amount of loss. What is the journal entry for sale of asset, children? Journal entry for sale of asset. Bank to asset. Asset का लेजर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? By bank. It's 56,500. And children, आपने asset को loss में बेचा है. What is the journal entry for loss? Journal entry. Some donkeys don't know the difference between journal entry and ledger posting, because as I have already said, they are donkeys. Journal entry, statement of PL debit to asset. So value would be 12,806. 74,925 would be the answer of total. समझ गए सब लोग?
पक्का? Any doubts? Many doubts on this, children? Do No, sir. start. यहाँ पे 1 जनवरी 14 को आपने असेट खरीदी, सो पहला सेशन जो होगा दैट वुड बी 14-15, दूसरा होगा 15-16। आपने 14 को जो असेट खरीदी है चिल्ड्रन, वो 14-15 में फॉल करेगी। 14-14 में फॉल कैसे कर सकती है? 13-14 होगा। 13-14 होगा। 14-14 कैसे हो सकता है? इसलिए मैंने डेलिबरेटली 14-15 पहले लिखा था, क्योंकि 14-15 वाला तो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 14 को एंड इट वुड एंड ऑन 31 मार्च 15। सुनाई पड़ गई बात? This session would start on 1 April 15 and ends on 31 March 16। ये वाला जो है स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 13 को और फिनिश होगा 31 मार्च 14 को। तो 14-14 can never be the accounting session, it would be 13-14। So asset खरीदा, we'll be putting to bank, 23 की asset और 2 का expense 25। This year would certainly end when, children? On 31st March. So we used the asset in this year for how many months? 3 months. So 25,000 का 20% 5,000 होता है। मेथड इज पहले डिमिनिशिंग बैलेंस से कर रहे हैं हम, तो 5,000 रुपी का आप कैलकुलेशन करेंगे 3 मंथ्स के लिए इंटू 3/12। सो दिस वुड फॉल टू 1250। So carried down value would be 23,750. Total would be 25,000. And children, to balance brought down 23,750 आ जाएगा 1 अप्रैल 2015। अगेन हमने इस एसेट को सेकेंड ईयर फिर से यूज किया। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज डिमिनिशिंग बैलेंस। 20% would be charged on which value? 23,750 का 20% कितना होता है? 4,750। And again shortage occurs to be seen on the credit side. So balance carried down is what, children? 19,000। यही ब्रॉट डाउन हो जाएगा। ओ सॉरी, ये 14 लिखनी थी, गलती से 15 लिख गया। एंड 23,750। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को समझने में? हाउ डिड so 1 April 2015 to balance brought down 19,000। in the very same year आपने ये asset बेचा है December 31st को। so children, we use the asset only up till December 31st। so what is the book value of asset on 1 April 15, children? 19,000। एंड डेप्रीसिएशन आप कितने टाइम का चार्ज करेंगे? 9 मंथ्स का। 9 मंथ्स का डेप्रीसिएशन 19,000 रुपी का 20% फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी मंथ्स? 9 मंथ्स। इट वुड बी 3,800। तो साल भर का हो गया ना, 9 मंथ्स का तो उससे कम ही होगा, 2,850। सो डेप्रीसिएशन आया 2,850। by depreciation account is 2,850। book value जिस दिन आपने asset बेचा would be calculated by subtracting 2,850 from 19,000। क्या आएगा? 16,150। and as per the question, children, we sold the asset for what price? 10,800। what is the journal entry for sale value, children? सेल ऑफ एसेट की जर्नल एंट्री क्या होती है? बैंक टू एसेट। सो व्हाट पोस्टिंग विल बी? बाय बैंक अकाउंट। some people are watching the question like a movie।
फोटोकॉपी की पैदावार है तो छापे जा रहे हैं बस। तो आपने असेट को बेचा 10,800 में, चल रहा है, गलती से 16,150 लिख गया था, तो 10,800 में बच्चों असेट बिक गई जो 16,150 की थी। So you suffered loss or made gain, children? How much? 5,350. So what is the journal entry for loss? पांडे जी बता पाएंगे जर्नल एंट्री लॉस की? लॉस की जर्नल एंट्री क्या होती है? अरे ग्रेट, एक्सेलेंट, लॉस अकाउंट डेबिट। क्योंकि जब ये पैदा हुए थे ये भी घर वालों के लॉस थे एक, तो घर वालों ने पहले दिन ये एंट्री की थी, लॉस अकाउंट डेबिट। चलिए, जर्नल एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू असेट। सो लॉस की वैल्यू आएगी 5,350, टोटल कर देंगे हम लोग, इट वुड बी 19,000। इफ एनीबडी हैज एनी मिसमैच इन दिस, प्लीज डू आस्क चिल्ड्रन। दिस वेरी सेम क्वेश्चन विल नाउ बी डन विद स्ट्रेट लाइन मेथड। तो बच्चों सबको पता है कि भाई स्ट्रेट लाइन मेथड हो या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हो, फर्स्ट ईयर एवरी टाइम वुड रिमेन सेम। फर्क आना कहां से महसूस होगा? सेकेंड ईयर ऑनवर्ड से। लेट्स सी क्या डिफरेंसेस एंड डिविएशंस हमको मिलेंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एज आई सेड चिल्ड्रन, दैट फर्स्ट ईयर वुड रिमेन सेम। डिफरेंसेस कहां से आपको मिलेंगे? सेकेंड ईयर से। रेडी टू अंडरस्टैंड एवरीबडी? चलिए, तो इट वाज कमिंग 23,750। व्हाट वाज द asset purchase price, children? 25,000. 20% of that would be coming 5,000. So this would become carried down 18,750. Am I correct? अब डेप्रीसिएशन 25,000 पे ही चार्ज होगा चिल्ड्रन। 20% कितना होता है? 5,000, बट 9 मंथ्स के लिए कितना हो जाएगा? 3,750। तो आपकी बुक वैल्यू सर्टेनली कितनी आ जाएगी? 15,250। चिल्ड्रन, इट्स 15,250। ओ सॉरी, 18,750 में 3,750 माइनस करना था, बाय मिस्टेक मैंने इसको माइनस कर दिया। 18,750 माइनस 3,750, इट्स 15,000। सबका आंसर आ रहा है? सॉरी, मतलब जिन्होंने सॉल्व किया उनका। बाकी लोग कहेंगे सर अननेसेसरी, व्हाई गिविंग रिस्पेक्ट टू द डोंकीज। सो डिफरेंस कितना आएगा चिल्ड्रन? 4,200। इट्स योर लॉस। सो फर्स्ट ईयर वुड रिमेन सेम। एंड ध्यान से देख के बताइए चिल्ड्रन, मेथड्स अलग अलग थे बट परसेंटेज वाज सेम। हियर वी हैव मोर लॉस और देयर वी हैड मोर लॉस। हियर वी हैव मोर लॉस। कुछ अकाउंटेंसी नहीं समझते बट अंग्रेजी समझते हैं। हियर वी हैव मोर लॉस। क्यों यहां पे ज्यादा लॉस है? क्योंकि यहां पे आपकी एसेट ज्यादा गिर गई है। लास्ट टाइम कितना लॉस आया था जब आप डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से इसको कर रहे थे? लॉस वाज हाउ मच? 5,350, क्योंकि वहां एसेट कम डेप्रिशिएट हुई थी इसलिए लॉस ज्यादा था। यहां एसेट ज्यादा डेप्रिशिएट हो गई इसलिए लॉस कम आ रहा है। आ गया सबका आंसर? एनीबॉडी हैविंग डाउट ऑन दिस? पक्का? सो we have after this question children, question number 13। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और मैंने जानबूझ के यहाँ पे वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट कर दी थी टाइम पीरियड के चिल्ड्रन। सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा कि हमने एसेट खरीदी कब है चिल्ड्रन? जून। और ये जून देख के तो आपको यही लग रहा होगा दैट द ईयर वुड सर्टेनली एंड ऑन 31st मार्च। इज इट सो? नाउ द ईयर एंड्स व्हेन चिल्ड्रन? तो सबसे पहले क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करना हो डेप्रिसिएशन का, एक आपको ब्रह्मास्त्र देता हूं। कभी आप जीवन में गलती करेंगे ही नहीं, बट अगेन ये ब्रह्मास्त्र उन्हीं के काम आएगा जिनको होमवर्क या क्वेश्चन सॉल्व करना है। टाइम पासर्स को ये बात सुनने की जरूरत नहीं है, वो आंख बंद कर लें और कान में वेल्डिंग करा लें 3 मिनट के लिए। पहला ईयर होगा सो कॉल्ड हमारा 15-16, स्टार्ट होगा 1 जून को और खत्म होगा 31 मई को। दूसरा वाला भी चिल्ड्रन स्टार्ट होगा 1 जून 16 को और खत्म होगा 31 मई 17 को। और तीसरा वाला भी चिल्ड्रन स्टार्ट होगा 1 जून 17 को एंड इट वुड सर्टेनली एंड ऑन 31 मई 18।
और 31 में 18 को ये आपने एसेट बेची है, मतलब पूरे साल भर इस्तेमाल किया होगा। तो सबसे पहले चिल्ड्रन आपने लिखा होगा जून 15 टू बैंक 80,000। व्हाट्स द मेथड? स्ट्रेट लाइन। 31 मई 16 को हमारा ईयर एंड हो जाएगा। डेप्रिसिएशन साल भर के लिए कितना है बच्चों? 8। कैरेट डाउन एंड ब्रॉट डाउन 72। एंड व्हाट्स द डेट ऑफ ब्रॉट डाउन? जून 16। अगेन आपने मई 17 को अपना ईयर खत्म किया। ऐसे मत लिखिएगा डॉट डॉट लगा कि, ये तो मैं लिख रहा हूं। और चिल्ड्रन आपका बैलेंस कैरेट डाउन कितना आएगा? 64,000। अगेन चिल्ड्रन ऑन जून 17 योर ब्रॉट डाउन वैल्यू वुड बी 64,000। एंड चिल्ड्रन सो कॉल्ड 18 को आप फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे क्योंकि साल भर का है 8,000। तो अब आपने असेट बेची है चिल्ड्रन। बुक वैल्यू ऑन 1 जून 17 ईयर के स्टार्ट में कितनी थी? 64 एंड 8,000 आपने डेप्रिशिएट किया। तो बुक वैल्यू कोइंसिडेंटली ईयर एंड में कितनी आ गई बच्चों? और आपने असेट बेची कब है? कब? 31 मई। हैड इट बीन 1 जून तो आप कैरेट डाउन करके फिर अगले साल सेल दिखाते, प्रॉफिट लॉस सेम ही आता, प्रॉफिट लॉस सेम आता, बट अकाउंटिंग ईयर चेंज हो जाता। ओके तो 56 की एसेट को भी सर्टेनली सेल एट व्हाट वैल्यू चिल्ड्रन? 50,000। तो 50,000 में अगर आपने एसेट बेच दी और 56 इसकी वैल्यू थी चिल्ड्रन, व्हाट्स द डिफरेंस? लॉस। सो वील राइट बाय बैंक अकाउंट सेल वैल्यू हाउ मच? 50,000 एंड लॉस कितने का है चिल्ड्रन? आई होप सो पीपल मस्ट हैव रिटन द करेक्ट डेट सेट। समझ में आ गया? बिकॉज 31 मई 18 को बेचा है ना, और उसी दिन हमारा ईयर भी एंड हो रहा है। अगर यही 1 जून को बेच दिया होता तो सॉल्यूशन वुड हैव बीन अ बिट डिफरेंट चिल्ड्रन। तब यहां पे आप लिखते सो कॉल्ड बाय बैलेंस कैरेट डाउन 56 और फिर आप ब्रॉट डाउन करते 56 और फिर आप 50 में बेचते और 6 का लॉस दिखा देते हैं क्योंकि डेट 1 जून हो गई है सेल की। बट क्योंकि यहाँ पे तो मई 31 को एसेट बेची, उसी दिन ईयर एंड हो रहा है, तो सेम ईयर एंड पे आपको सारा हिसाब किताब सेटल करना है। समझ में आ गया? पूरा खेल डेट का है। डेट गड़बड़ हुई, राम राम सत्य हो जाएगा। समझ में आ गया? तो अगर डेट यहाँ पे 1 जून आ जाती तो कैरेट डाउन करते आप और फिर सेल अगले साल दिखाते। दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड तो खत्म हो गया मई में और सेल जून में हुई है, तो इज द ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस इन दिस ईयर? इट्स टेकिंग प्लेस व्हेन? तो अगले साल होगा। तो 12 बजे के पहले दिन में कभी भी खाना बनाओ वो बासी नहीं होता, बट जब 12 बज जाता है तो उसके बाद उसी खाने को बासी बोल देते हैं। समझ में आया कि नहीं? गॉट इट क्लियर? पक्का? तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि आप क्लास का गोला मार के बंक करके बर्थडे पार्टी में चले गए तो ऑब्वियसली आपको आवारा बोला जाएगा, आपको पढ़ने लिखने में कोई मतलब नहीं है। बट देन टू आप अपनी स्किल में, अपने काम में निपुण है, प्रोमिनेंट है, आपने काम कंप्लीट किया है, तो मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। जिसको पढ़ना है उसको पढ़ना है, जिसको नहीं पढ़ना भगवान हाथ भी पकड़ ले, बेटा आईएएस का पेपर है, ABCD का करेक्ट ऑप्शन लिखवा रहा हूँ, नहीं 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 नहीं, हमारी तो किस्मत इतनी मनहूस है, हम पैदा भी हो गए तो मनहूसियत थी। तो बस यही डिफरेंस यहाँ पे भी है चिल्ड्रन। अ मैन इज नॉट नोन बाय हिज डीड्स, अ मैन इज नोन बाय हिज आउटपुट। तो मेरे साथ रहेंगे तो कहावतें बदल जाएंगी। बोलते ना मैन इज नोन बाय हिज डीड्स, नो 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 नो, अ मैन इज नोन बाय आउटपुट। आपने अचीव क्या किया, दैट इज इंपॉर्टेंट। हाउ डिड यू अचीव दैट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दुनिया आपको इसकी इंपॉर्टेंस जरा भी नहीं देती है। सो प्लीज अपडेट दिस अगर ये गड़बड़ था तो। चलिए भाई, तो चिल्ड्रन अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि वर्किंग नोट एकदम शॉर्टकट तरीके से बनाना है, बहुत ज्यादा अंग्रेजी या रामायण लिखने की जरूरत नहीं है। उसमें मार्क्स कटेंगे जरूर, अगर आप नहीं बनाएंगे या गलत बना देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, बट ज्यादा लिखने पे कोई एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे नहीं। तो यू कैन सिंपली राइट बुक वैल्यू कोडेड वर्ड में, चलता है, ये एक्सेप्टेबल है। चलें आगे। चलिए प्लीज पुट द हेडिंग इन योर क्लास वर्क कॉपी चिल्ड्रन।
मल्टीपल परचेज एंड सेल ऑफ असेट। हेडिंग लिख दी सबने, पहले ये हेडिंग लिख ले सब लोग, मल्टीपल परचेज एंड सेल ऑफ असेट। कुछ नया नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन करने का तरीका चेंज होगा। सिर्फ अभी तक यू वर अ सिंगल चाइल्ड इन द फैमिली, नाउ यू हैव सिबलिंग्स, सो यू नीड टू आस्क पेरेंट्स हाउ दे नर्चर्ड मेनी। तो क्वेश्चन का कंटेंट मैथमेटिक्स सेम रहेगी, सिर्फ थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा, जूम बढ़ जाएगा। ओके, क्विकली पुट द हेडिंग इन योर कॉपी चिल्ड्रन, मल्टीपल परचेज एंड सेल ऑफ असेट।